So this particular video is on Aristotle. We had discussed Plato and Aristotle's question in the last class, and in this class we are going to discuss the notes that have been provided to you, because this particular class was missing in the last the notes that we had, the classes that we had provided to you, the recorded classes. So yes, Aristotle, as we had discussed during the question discussion, that he is one of the most influential thinkers and philosophers in the history of Western philosophy. He has, in a way, found a middle ground between all the thinkers of the early Greek. So, on the one hand, there were particular philosophers who used to believe that idealism or permanence is the reality. These were the strand of philosophers from early Greek. And on the other hand, there were philosophers who used to believe that matter is the reality. And here we have discussed for certain names like Heraclitus, Thales, Anaximander. Those who used to believe that ideas are the ultimate reality, वहाँ पे हमारे पास philosophers थे पार्मेनाइडस थे, प्लेटो थे, अब मैटर को मानने वाले थे हेराक्लिटस, थेलिस, एनाक्सिमेंडर एंड डेमोक्रिटस, राइट। एरिस्टोटल ने समझा चीज़ों को अच्छे से, उसने जब नेचर को देखा तो ही अंडरस्टूड दैट nothing in this world is purely matter or pure form. Pure matter and pure form cannot explain the reality. Every reality, from a man to an insect to a tree to every other object that we see around this world, has a form and matter. It has particular shape, it has particular form, and it has certain matter. For example, let's take an example of wooden table. UPSC has asked this question. Wooden table का example लें तो wood is the material, it is the matter. But what is the form? Form is something that is unique to that particular object, which makes what it is, and that is tableness. टेबलनेस जो उसके साथ पर्टिकुलर है, जैसे चेयर है हमारी, तो चेयर के पास चेयरनेस है, वो टेबल को चेयर से अलग बनाती है. तो वो जो उसकी फॉर्म है, जो नेस है, दैट इज समथिंग विच इज पिक्यूलियर टू एवरी ऑब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज मिक्सड विद द मैटर. सो एज अ बॉटनिस्ट, एज अ नेचुरलिस्ट, एरिस्टोटल हैड रियलाइज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ही सेड दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन रियलिटी, अब हमने हमेशा बात करी कि फिलोसफी में व्हाट डू? वी ट्राई टू एक्सप्लेन द रियलिटी. द फिलोसोफर वांट्स टू नो व्हाट इज द रियलिटी एंड हाउ डू आई explain it. So he found that if you accept this form and matter mixed as the ultimate reality, then you will be able to explain the world more rationally and scientifically. And that's why he said that neither form nor matter alone is the substance, matter plus form is the substance. Okay, so ये इसने बोला, start करता है with the critique of Plato, his guru. He says that there is no form without matter. And to Democritus, he says that nature does nothing in vain. So it cannot be only material chance going on, right? And finally, he says that the product is hylomorphic or matter plus form. इसको हम हाइलोमॉर्फिज्म भी कहते हैं. ये शब्द भी कभी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, यूपीएससी के अंदर. दे माइट आस्क एरिस्टोटल्स हाइलोमॉर्फिज्म. सो दैट इज फॉर्म प्लस मैटर, जिसको हमने सब्सटेंस माना, जिससे हर चीज़ दुनिया की बनी है. ठीक है. देन ही एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन फॉर्म एंड मैटर. व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज inseparable relation. For example, a bronze statue is not just bronze or just the shape, but a combination of both. It has a relative relation. For example, the form of house, that is its design and purpose, organizes the brick and the wood into a functional dwelling. So it is the form which gives structure and purpose to the matter. Okay, and then again you see that the form of the house becomes the reason for its functional dwelling.
So that is the relative relation. And third is potentiality and actuality. Matter represents pure potentiality. But potentiality का मतलब है the potential to be converted into something what it is not. जो currently वो नहीं है, वो बनने की उसमें क्षमता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियलिटी. और इस पर बहुत बार सवाल आया यूपीएससी के अंदर, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी ऑफ एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल ये बोलता है कि जो भी कोई चीज़ है उसके अंदर अपना एक सेल्फ कंटेन्ड एंड है कि वो कहाँ तक पहुँचेगी, वो अल्टीमेटली क्या बनेगी. फॉर एग्जांपल एक मैंगो सीड है, तो मैंगो सीड में पूरी क्षमता है मैंगो ट्री बनने की, ठीक है. तो वो अपनी फॉर्म अटेन करेगा, बट उस मैटर के अंदर ही पहले से उसकी पूरी क्षमता है, द पोटेंशियलिटी इट हैज़. बट सब्सटेंस के अंदर दोनों चीज़ है, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी. इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो. मैटर के अंदर क्या है, पोटेंशियलिटी, और फॉर्म क्या देता है उसको, एक्चुअलिटी. इसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती. और हमारा जो सब्सटेंस है जो कि फॉर्म एंड मैटर दोनों से मिलके बना है, उसमें पोटेंशियलिटी प्लस एक्चुअलिटी दोनों है. ध्यान से समझना इस चीज़ को. तो इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम सब्सटेंस कह रहे हैं, उनके अंदर क्षमता भी है और उस क्षमता को पाने की एक पावर भी है, जिसको वो बोलता है एंटेल्की, द सेल्फ कंटेन्ड एंड ऑफ एवरीथिंग. सेल्फ कंटेन्ड एंड. जैसे मैंगो सीड है, उसका सेल्फ कंटेन्ड एंड क्या है, मैंगो ट्री बन जाना, ठीक है. एक वुड है तो उसका सेल्फ कंटेन्ड एंड क्या है कि वो चेयर बन सकता है, वो टेबल बन सकता है. इट कैन बिकम एनीथिंग, राइट. स्पेशली उसका जो पर्टिकुलर एक्चुअलाइजेशन जो उसका हो सकता है वो, जैसे कि वुड को आप लिक्विड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट, वो उसकी पोटेंशियलिटी में नहीं आता. वाटर भी एक मैटर है, वाटर जो है वो लिक्विड में इस्तेमाल होगा या सॉलिड आइस में इस्तेमाल होगा, राइट, या हीट में इस्तेमाल होता है. उसकी पोटेंशियलिटी इन चीज़ों में है, तो इट कैन एक्चुअलाइज दिस. फोर्थ थिंग वो बोलता है, जिसपे सवाल फिर आया यूपीएससी के अंदर, कि फॉर्म इज प्रायर टू मैटर. He says form is prior to matter because it is the form which defines the essence and the function of the substance. भाई हमारा जो क्ले है वो आगे जाके पॉट बनेगा, तो पॉट बनने की जो एक्चुअलाइजेशन है, जो एसेंस है, वो क्ले के अंदर मौजूद है पहले से. समझो इस चीज़ को. क्ले जो है वो हमारा ब्रिक भी बन सकता है, वो ईंट भी बन सकती है, और एट द सेम टाइम वो हमारा पॉट भी बन सकता है. तो ये एसेंस उसके अंदर पहले से शामिल है. अब वो फंक्शन कौन सा सर्व करेगा ये भी उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है. जैसे कि पॉट है तो पॉट फंक्शन सर्व करेगा वाटर स्टोरेज का, ठीक है. जो ब्रिक है, ब्रिक फंक्शन सर्व करेगी, एक हमको वॉल बनानी है, जैसे है ना, कंस्ट्रक्शन करना है, वॉल बनानी है, तो उसके लिए ब्रिक इस्तेमाल होगी. तो उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर उसको एसेंस और फंक्शन प्रोवाइड करता है फॉर्म. सो सब्सटेंस के अंदर फॉर्म इज प्रायर टू मैटर. कोई भी सब्सटेंस हो इस दुनिया का, ठीक है, तो उसकी फॉर्म और मैटर होती है. तो फॉर्म पहले आती है, मैटर उसके बाद उसको फॉलो करता है. तो डायरेक्शन फॉर्म देता है, मैटर क्या करता है, फॉलो करता है. बिल्कुल ऐसे कि आप पहले विचार करते हो और फिर विचार को वस्तु में कन्वर्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लॉक ऑफ मार्बल हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ स्टैच्यू, बट इट इज द फॉर्म. Form means the sculpture's design that actualizes this potential. Then he rejects idea alone as substance, matter alone as substance, जो हमने बता दिया. His theory is called as hylomorphism. He says that all things of the world, all things and beings, things देखो या beings देखो, कुछ भी देख लो आप दुनिया के अंदर, हर चीज़ फॉर्म और मैटर से मिलकर बनी है. हर चीज़ को देख लो आप, किसी चीज़ को देख लो. सो दिस कॉम्बिनेशन अलाउज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंज एंड डेवलपमेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. अभी तक जो फिलोसफर्स थे वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, चेंज को. कि अगर भैया ये बताओ, अगर आइडियाज़ से बनी है सब चीज़ें, सिर्फ आइडिया ही रियल है, तो बदलाव कैसे आ रहे हैं. और आइडियाज़ को आप बोल रहे हो कि आइडियाज़ कैसे हैं, अल्टीमेट आइडियाज़ कैसे हैं, वो इटर्नल है, नॉन टेम्पोरल है, नॉन स्पेशियल है, दे रिजाइड इन दी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़. तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में तो कोई चेंज होता नहीं, और वर्ल्ड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं वहाँ पे बदलाव ही बदलाव है. तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन एज पर एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल ने बोला कि भैया मेरा सब्सटेंस जो है उसके अंदर दोनों एलिमेंट है,
मैटर जो है वो चेंज और डेवलपमेंट को बताएगा, और चेंज डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है वो कौन बताएगा? फॉर्म। इस चीज़ को समझो, कोई मैटर है तो वो उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं, बट बदलाव किस डायरेक्शन में हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन फॉर्म तय करती है, बट उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं तो चेंज भी हो रहे हैं, दैट इज देयर। तो एरिस्टोटल ने फॉर्म और मैटर के थ्रू चेंज, डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम स्टेबल एलिमेंट दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, राइट। मैटर प्रोवाइड्स द सबस्ट्रेट while form actualizes this potential, right, and creating specific substance with distinct properties. Then he goes on to explain the scale of substance. वो बोलता है कि substance की भी हायरार्की है, बिल्कुल वैसे जैसे प्लेटो बोलता था कि हायरार्की ऑफ आइडियाज। आपको पता है ना प्लेटो ने क्या बोला था कि सबसे ऊपर है मेरा आइडिया ऑफ गुड। आइडियाज भी एक लेवल के नहीं होते, एक होता है लीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया और एक होता है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। हम न्याय वैशेषिक फिलॉसफी में जाएंगे तो वो भी बताते हैं, सामान्य की जब बात करते हैं वो लोग तो वो बताते हैं कि परा परा अपरा, अपरा परा परा और परा, मतलब परा मीन्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, अपरा मीन्स लीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, परा परा मीन्स इंटरमीडिएट लेवल। ओके, सो दिस इज द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, मतलब एग्जिस्टेंस की एक चेन है जिसमें एपेक्स से लेकर बॉटम तक एग्जिस्टेंसेस हैं चीज़ों की, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताई। और लेवल्स में क्या क्या बताया? सबसे नीचे बताता है कि फॉर्मलेस मैटर, प्योर पोटेंशियलिटी, प्योर पोटेंशियलिटी, जिसको WT स्टेस ने बताया कि व्हाट बिकम्स इज मैटर एंड व्हाट इट बिकम्स इज फॉर्म। सो एट द बेस ऑफ द हायरार्की दिस रिप्रेजेंट्स मैटर विदाउट एनी स्पेसिफिक फॉर्म और पर्पस, right? Second is inanimate objects. They have both form and matter but no soul, जैसे rocks और metal। तो फॉर्म भी है, मैटर भी है, बट सोल नहीं है, ठीक है। जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, वहां पे फॉर्म भी है, मैटर भी है, बट क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, ऐसे बोलता है। फिर आते हैं थर्ड लेवल पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे शुरुआत होती है प्लांट्स से। दे हैव न्यूट्रिटिव सोल, एनिमल्स दे हैव सेंसिटिव सोल एंड ह्यूमंस हैव रैशनल सोल। तो तीनों के सोल भी अलग अलग है। वहां पे न्यूट्रिटिव सोल है, वो क्या कर सकता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। एनिमल्स क्या कर सकते हैं? परसेप्शन एंड मूवमेंट। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? रीजनिंग कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट। और हम सबसे भी ऊपर कौन है? प्योर फॉर्म। एट द टॉप ऑफ द हायरार्की रिप्रेजेंट्स मैटरलेस फॉर्म सच एज प्राइम मूवर, जिसको प्योर एक्चुअलिटी, एक्टुस पुरुष विदाउट पोटेंशियलिटी बोलता है एरिस्टोटल, और इसको वो कंपेयर करता है गॉड से। इसलिए आप ये भी जानना कि एरिस्टोटल का जो गॉड है वो इम्पर्सनल गॉड है, वो फॉर्मलेस गॉड है, सॉरी आपका मैटरलेस गॉड है, प्योर फॉर्म वाला गॉड है, ठीक है। इट इज़ प्योर एक्चुअलिटी, इट डज नॉट लैक एनीथिंग। इसलिए गॉड जो है उसको वो किसी पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ गॉड। भगवान की दिशा में ही हर चीज़ अपने आप को डेवलप कर रही है, ठीक है। हर चीज़ उसकी तरफ ही मूव कर रही है, उसकी लाइट में ही मूव कर रही है। जैसे सनलाइट की लाइट से हर चीज़ ग्रोथ होती है, जो प्लांट्स हैं, इंसान है, जितने भी जीव जंतु है, वो सनलाइट की वजह से अपनी ग्रोथ और अपनी एपेक्स स्टेज पे पहुंचते हैं। वैसे ही गॉड के कारण हर चीज़ इंक्लूडिंग द सनलाइट, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स एंड बीइंग्स द वर्ल्ड, दे आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एंड दिस पर्टिकुलर गॉड इज द प्योर फॉर्म. It does not have matter, so it does not have any desire, it does not have any purpose, just that things happen because they are bound to happen this way. So, and next comes the theory of causation. This particular question is the question of central theme regarding causation, that what are the causes behind the effect. So Aristotle believes in causation because he was a naturalist. He said that there are different kinds of explanation for why a thing is. So causation क्या explain करता है कि कोई भी चीज़ है तो उसका कारण क्या है,
इसको भारतीय दर्शन में कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो अरिस्टोटल बोलता है 4 तरह की कॉजेज होते हैं, अगर कोई भी चीज़ है इस दुनिया की तो उसके 4 कॉजेज होंगे, आप देख लेना, समझ लेना किसी भी चीज़ को। पहला होगा उसका मटेरियल कॉज, कोई ना कोई मटेरियल होगा ना जिससे वो बनी है चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा क्ले है, हमारा पॉट है, तो पॉट क्ले से बना हुआ है, उसका मटेरियल कॉज है वो, ठीक है। इसको भारतीय दर्शन में मटेरियल कॉज को बोला उपादान कारण, ये कंपैरिजन हो जाएगा हमारा, उपादान कारण, ठीक है, उपादान कारण बोला। फॉर्मल कॉज, द फॉर्म और पैटर्न ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जिस पैटर्न में वो चीज़ बनेगी। तो ब्रॉन्ज स्टैचू है कोई, तो ब्रॉन्ज स्टैचू की पर्टिकुलर उसकी जो है फॉर्म है तो वो उसमें कन्वर्ट होगी, तो वो भी उसका कॉज है। फिर होगा उसका एफिशिएंट कॉज, मतलब कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई प्रोसेस ऐसी होगी जिसकी वजह से वो बनी है, जिसकी वजह से उसकी पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस बन के आई है। फॉर एग्जांपल एक एप्पल का लैपटॉप है, तो एप्पल के लैपटॉप को बनाने के लिए एक कोई ना कोई मैटर चाहिए होगा, कोई ना कोई उसकी फॉर्म बनानी होगी, कोई ना कोई मशीन्स होंगी, ह्यूमंस होंगे जो असेंबलिंग करेंगे और मशीन्स अपना काम करेंगी, तो वो साथ मिलकर उसके एफिशिएंट कॉज हो गए। फिर उसका फाइनल कॉज है कि फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर लैपटॉप को एक पर्पस सर्व करना है, ठीक है, उसको नेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल होना है, उसको वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होना है, उसको एंड उसके भी जो भी पर्टिकुलर डिफाइंड पर्पसेज हैं उसको सर्व करने हैं, तो उसका फाइनल कॉज हो गया। तो अरिस्टोटल कहता है कि हर चीज़ के पीछे 4 कॉजेज होते हैं, 1-2 कॉज नहीं होते, 4 होते हैं। बट अगर हम इन चारों कॉजेज को और अच्छे से देखें तो अल्टीमेटली 2 ही कॉज होते हैं, क्योंकि जो फाइनल कॉज है हमारा, जो कि पर्पस है किसी भी चीज़ को बनाने का, इट कैन मेल्ट इनटू द एफिशिएंट कॉज, बिकॉज द पॉटर जिसने डिसाइड किया है कि मैं पॉट बनाने वाला हूँ, उसके दिमाग में पहले से ही उसका पर्पस है ना, उसको पता है कि मुझे इस पॉट को क्यों बनाना है, तो उसको क्यों बनाना है, क्यों उसके पहले से दिमाग में। तो फाइनल कॉज कैन बी मेल्टेड इनटू द एफिशिएंट कॉज, और एफिशिएंट कॉज अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू फॉर्मल कॉज, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द पॉटर डिपेंड्स ऑन द डिजाइन दैट ही हैज़ इन हिज माइंड। तो अगर आप जो हमारे फाइनल कॉज है और एफिशिएंट कॉज है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं फॉर्मल कॉज में, बट मटेरियल कॉज जो है वो क्या है, इरिड्यूसिबल है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है, फॉर्म एंड मैटर। यहाँ पे भी कॉजेशन में देखें तो हम चीज़ किस चीज़ की बनी है, फॉर्म प्लस मैटर की, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 ही कॉज बचते हैं, फॉर्म और मैटर। अब सवाल ये आता है कि भाई अरिस्टोटल का जो कॉजेशन है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक कॉजेशन। साइंटिफिक वैज्ञानिक कार्य कारण का सिद्धांत और अरस्तु के कार्य कारण के सिद्धांत में मूलभूत भिन्नताएं क्या क्या है। तो नेचर ऑफ कॉजेस पहले देखो, एरिस्टोटल के में 4 कॉजेस हैं, ठीक है, और साइंटिफिक कॉजेशन में मोस्टली वो एफिशिएंट कॉज में मानते हैं। पर्पस एंड फंक्शन में एरिस्टोटलिक कॉजेशन में फाइनल कॉज को भी इंक्लूड करता है। साइंटिफिक कॉजेशन जो है वो कोई टेलीलॉजी, कोई फाइनल कॉज को नहीं मानता, ठीक है। कोई भी चीज़ दुनिया की है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, तो उनका कोई पर्पस नहीं था, वो बाय चांस ऐसी बनी और फिर उनका हमने पर्पस ढूंढा एज ह्यूमन बींग्स। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जैसे एरिस्टोटल क्या करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करता है, साइंस सिर्फ क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म्स को इंक्लूड करती है। फिर एग्जाम्पल ऑफ फाइनल कॉज, जैसे कि नाइफ्स पर्पस इज टू कट, सो यहाँ पे पर्पस इज इररिलेवेंट। एफिशिएंट कॉज में पॉटर शेप्स द क्ले इनटू पॉट। साइंस क्या बात करेगी, साइंस करेगी केमिकल रिएक्शंस की, साइंस जो है वो बात करेगी केमिस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री इस चीज़ की वर्क कर रही है तो उसने पर्टिकुलर शेप ले ली, इट्स एज सिंपल एज दिस। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द पर्पस कि भाई कोई उसका कोई फाइनल कॉज होगा, कि कोई उसके पीछे कोई थॉट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी एक केमिस्ट्री होती है, उसकी एक डिज़ाइनिंग होती है, जो कि दिस कैन बी एक्सप्लेन विदाउट टेलियोलॉजी, एज सिंपल एज दिस। तो और अरिस्टोटल का जो कॉजेशन है इट इज़ इंटरकनेक्टेड एंड होलिस्टिक। साइंस का जो कॉजेशन है वो प्रिसीशन के लिए आइसोलेटेड फॉर्म्स में स्टडी किया जाता है, कि भाई एक एक देखो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। सो
And one interesting thing is that we can compare it with the philosophy of Satkaryavad as given in the philosophy of Sankhya philosophy. ठीक है, सत्कार्यवाद जो है हमारे भारतीय दर्शन के अंदर कई सारे दर्शन मानते हैं सत्कार्यवाद के अंदर, और जो सांख्य फिलोसफी है वो मानती है प्रकृति परिणामवाद में, राइट। तो एरिस्टोटल जो है उसकी फिलोसफी भी सत्कार्यवाद से मिलती जुलती है, क्योंकि सत्कार्यवाद भी मानता है कि एवरी इफेक्ट इज इम्प्लिसिट इन इट्स कॉज। हर जो इफेक्ट है, कारण है, कार्य है, वो अपने कारण के अंदर निहित है। और यही चीज़ एरिस्टोटल भी मानता है कि जो मैंगो ट्री है वो मैंगो सीड में पहले से ही निहित है, ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड एंड पहले से ही मौजूद है। इसे सत्कार्यवाद से आप कंपेयर कर सकते हो इसको, राइट। नाउ कम्स द क्रिटिक ऑफ एरिस्टोटल। भाई एरिस्टोटल जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, बोला कि मैं पुराने वालों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उनकी गलतियाँ थी, वो हमेशा चीज़ों को पार्शली स्टडी करते थे। मैं जो हूँ, मैं एक प्योर साइंटिफिक और होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, जिससे आप चीज़ों को बहुत रियलिस्टिकली, डिस्क्रिप्टिवली स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड दिस इज़ माई कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी, टू मेकिंग फिलोसफी मोर कॉमन सेंसिकल एंड अप्रोचेबल फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। But still, we can see some limitations in philosophy of Aristotle. And what are these limitations? We can include the name of certain philosophers like John Locke. John Locke कहता है कि Aristotle की metaphysics relies too heavily on speculative reasoning, ठीक है। David Hume कहते हैं कि the concept of causation, when we say that what we perceive as cause and effect are merely habits of thought rather than objective connections. We cannot explain what is the necessity between the cause and effect. भाई कोई अनिवार्य सिद्धांत तो नहीं है ना, अनिवार्यता का तो कोई जोड़ नहीं है दोनों के बीच में। एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ अनिवार्य होती है, ये अनिवार्यता आपने कब देख ली? When you have observed this consistency, necessity you have never observed. What you have observed is the constant conjunction, कि एक चीज़ होती है उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, और ये चीज़ें कंजॉइंटली होती हैं, एक साथ होती हैं, बट ये इसकी वजह से होती है। हाउ डू यू नो दिस? इस वजह को तो आपने अंदर से जाके नोटिस नहीं किया ना, तो हाउ डू यू नो दिस? तो एरिस्टोटल पे एक क्रिटिसिज्म है, ये डेविड ह्यूम करेंगे, डेविड ह्यूम को हम जाके पढ़ने वाले हैं तो आप समझ जाओगे वो क्या बोलना चाहते हैं। कॉजेशन पे उनका बहुत बड़ा क्रिटिक है। डेविड ह्यूम ने इंडक्शन को भी क्रिटिसाइज़ किया। इंडक्शन वो है प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंडक्टिव जनरलाइजेशन करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक। फिर मॉडर्न साइंस जो है, जिसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, वो चीज़ इसको मानती नहीं जो एरिस्टोटल ने थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है, राइट। एक और क्रिटिसिज्म है कि एरिस्टोटल जो है उसने अपने गुरु को क्रिटिसाइज़ किया था, प्लेटो को, कि उसने अननेसेसरी डुप्लीकेशन कर दिया, उसने एक मटेरियल वर्ल्ड बना दिया और एक फॉर्मल वर्ल्ड बना दिया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ बना दिया। बट अगर आप गौर से देखोगे तो एरिस्टोटल खुद यही कर रहा है। एरिस्टोटल क्या बोलता है अपने चेन ऑफ बीइंग के अंदर कि भाई एक तो प्योर फॉर्म है और एक प्योर मैटर है। तो भैया ये बात तो वही मान रहा था, ये बात तो प्लेटो भी तो मान रहे थे कि फिजिकल वर्ल्ड देखें तो वहाँ पे तो हाँ, वहाँ पे चीज़ें हैं मैटर, और ये जितना भी मैटर है ये अपने करस्पॉन्डिंग आइडियाज़ की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए उनमें चेंजेस आ रहे हैं। बट एरिस्टोटल का कहना सिर्फ ये था कि भाई कोई वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ अलग नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर ही वो जितने भी सब्सटेंस है उनके अंदर फॉर्म और मैटर दोनों मिला हुआ है, डिफरेंसेस कुछ नहीं थे। एरिस्टोटल ने भी आगे जाके ये प्योर फॉर्म मानी, तो इसकी प्योर फॉर्म को हम कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ऑफ आपके प्लेटो। सो इन अ वे एरिस्टोटल एंड्स इन प्लेटोनिक व्यू, वी कैन से कि अल्टीमेटली वो प्लेटो की जैसे ही एंड कर रहा है, तो फिर क्यों प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है वो चीज़। फाइनली हाउएवर वी कैन कंक्लूड दैट एरिस्टोटल्स जो कंट्रीब्यूशन थे एरिस्टोटल के टू फिलोसफी, दे आर वास्ट एंड फाउंडेशनल इन द सेंस दैट उसने व्यक्ति ने कुछ बुनियादी काम किए फिलोसफी के अंदर जो अभी तक नहीं किए थे फ़लसफ़े के अंदर। जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने, ये बहुत अच्छे से बताया कि हर चीज़ के अंदर उसका एक सेल्फ कंटेन्ड एंड होता है, और फॉर्म एंड मैटर दोनों एक साथ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और उसी से हमारी हर चीज़ बनती है, थिंग्स हो या बींग्स हो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है, बट एटलीस्ट वी कैन से दैट एरिस्टोटल इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर। एन वाइटहेड ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जितनी भी फिलोसफी है वेस्ट की,
आप अगर उसकी बहुत गहनता से अध्ययन करो, उसका बहुत डिलीजेंटली, बहुत आर्डेंटली आप उसको स्टडी करो, तो आपको पता लगेगा कि वो सारी फिलॉसफी एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर पहले से ही निहित थी, मौजूद थी। मतलब एरिस्टोटल और प्लेटो ने वो सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर ली थी जिन पे अब ये लोग व्याख्याएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फुटनोट्स लिख रहे हैं। तो एन वाइटेड सेड दैट एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज जस्ट द फुटनोट ऑन द फिलोसफी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, एक था एन वाइटेड का। रसल कहते हैं, रसल का भी एक कोट है एरिस्टोटल के ऊपर। रसल कहते हैं कि एरिस्टोटल इज नथिंग बट प्लेटो मेड कंसिस्टेंट। एरिस्टोटल ने कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए, बस प्लेटो को कंसिस्टेंट बना दिया। प्लेटो को जो अन्य से डुप्लीकेशन किया था प्लेटो ने दुनिया का, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ मैटर का, उसको डुप्लीकेशन को हटा के उसने कंसिस्टेंट एक फिलॉसफी बना दी। ठीक है, तो एक ये हमारा कमेंट था रसल का, तो जिनको आप लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर फाइनली आंसर कंक्लूड करते हुए। तो हमने पूरा जो हमारा डिस्कस किया है, हमारे नोट्स भी है वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही है, इनका आप इस्तेमाल करो अपने आंसर्स में लिखने में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है डिस्कशन वाला तो प्लीज़ वॉच दैट, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको आंसर्स में चीज़ें लिखनी है। उसका जो फॉर्मेट है वो हम जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन रैशनलिज्म डेकार्ट के ऊपर।